شاہد ہٹک صاحب اڈیالہ جیل کے باہر آپ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں. جب سے آپ کی ٹانگ کے ساتھ ایشو ہوا تھا اس کے بعد آج پہلے دن آپ آئے یہاں پہ, تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی صحت کیسے ہے اور آج بھی بیٹھیں گے یہاں پہ پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری صحت الحمدللہ بہتر ہے, اور جو ڈاکٹرز نے جو مشورہ تھا اس کے مطابق انہوں نے جب کہا کہ آپ نے نہیں اٹھنا, تب تک نہیں اٹھا. جب انہوں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آپ اس قابل ہیں لیکن زیادہ زور نہیں کرنا, تو میں آیا ہوں. اور جو میرے لیڈر کی قربانی ہے جیل کے اندر, جس طرح ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے اور جس طرح ان کو پچھلے 2.5 سالوں سے قید حق میں رکھا ہوا ہے, جس طرح بشرا بی بی کو قید حق میں رکھا ہوا ہے, وہ ان کی فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا, تو ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے. ہمارے باقی آسرین یاسمین راشد, شاہ محمود قریشی صاحب, عمر سرفراز شیما اور جتنے ہمارے خواتین کارکن ہیں, فلک جاوید, سنم جاوید اور میاں محمود الرشید صاحب, جتنے بھی ہیں وہ بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں اپنی قید کی صورت میں. تو ان کی قربانی ہم سے بہت آگے کی ہے. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر موجود ہیں, اور آج بھی انہوں نے فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دیا. اور یہ اس ملک کے اندر نہ یہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں, اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ تھا, انہوں نے روٹا بنا کے دیا تھا. انہوں نے عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا ہے, وکلاء کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا, پولیٹیکل اور فرینڈس کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اور یہ تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہماری وہ رہتے ہیں صحت کے اوپر بھی, تو موجود ہیں ادھر. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ پھر ظلم کرتے ہیں, ادھر کارکنان کو پکڑتے ہیں, پانی پھینکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بے شرمی کی انتہا کرتے ہیں. خواتین جو ہمارا مشرقی کلچر ہے اس کی پامالی کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں جو کہ غیر سیاسی ہیں ان کے اوپر یہ تشدد بھی انہوں نے کیا, ادھر ہی پانی بھی پھینکا ان کے اوپر, ایف آئی آر بھی کاٹے ان کے اوپر. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اور اپنے پاکستانی قوم سے میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ سب نے نکلنا ہے, آپ سب نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے, آپ نے جدوجہد کرنی ہے, آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے اپنے لیڈر کو تنہا نہیں چھوڑنا. ہمارے اور آپ کے محبوب لیڈر عمران خان صاحب, جن کو سیاسی مقدمات کے اندر انہوں نے گرفتار کیا ہے, ان کو انہوں نے قید تنہائی میں بند کیا ہے. تو ہم عمران خان صاحب کی آئسولیشن جو ہے ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ہم ہر آخری حد تک جائیں گے. سر سہیل افریدی نے جو پنجاب کا دورہ کیا ہے, آپ بھی ان کے ساتھ تھے, ابھی بھی وزیر اطلاعات پنجاب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ انتشار پھیلانے آئے تھے, انتشار پھیلایا, اسمبلی کے اندر بھی انتشار پھیلایا, تو اس پر کیا کہیں گے سر؟ پنجابی جو ہے یہ ہمیشہ سے بڑے مہمان نواز رہے. پنجاب جب بھی ہمیں موقع ملا, پنجاب کے ساتھ ہمارا رشتہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بنا, تحریک انصاف کی وجہ سے بنا. لاہور کے اندر جب 2011 میں 8 اکتوبر کو ہمارا جلسہ تھا, تو تب سے ہمارا لاہور کے ساتھ بڑا برادرانہ تعلق بنا. اور وہاں پہ ہم جب بھی گئے لاہور, تو لاہور کی عوام نے ہمیں ویلکم بھی کیا, ہمیں پیار بھی دیا, ہماری عزت بھی کی, ہمیں کھانے بھی کھلاتے رہے, ہماری مہمان نوازی بھی کرتے رہے. اس کے بعد جب زمان پارک ہم جاتے تھے تو پنجاب کی عوام, اسپیشلی لاہوری, ہمیں انہوں نے کھانے بھی کھلائے, ہمیں اپنے گھروں میں انہوں نے رہنے کی جگہ بھی دی, جتنا پاسبل تھا ہیومنلی انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی. اور اس دفعہ بھی جب ہم گئے, تو جب ہم چکری پہنچے, تو وہاں پہ انہوں نے چکری کا قیامت وام بند کیا تھا, باوجود اس کے کہ انہوں نے وہاں پہ بڑی پولیس ڈپلائی کی تھی. ہمارے کارکنان وہاں پہ آئے, پنجاب کی عوام آئی, انہوں نے ہمارا استقبال کیا, سہیل افریدی صاحب کا استقبال کیا. اس کے بعد جدھر جدھر بھی ہم گئے, ہر جگہ پہ وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ہماری سیف والے ہو اچھا جہانگیر ہو وہاں پہ ہمارا استقبال کیا. تو لاہور جو ہے وہ عمران خان کا ہے, تحریک انصاف کا ہے. 8 فروری کو لاہور کی عوام نے ثابت بھی کیا. اور جب ہم گئے اور اتنے بلاکیج کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہمارے سے پارٹیسپیٹ کیا, کلیپنگز کیے, ہمیں وارم ویلکم کیا, ہمیں فلائنگ کسی بھیجی, ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا. اور عمران خان صاحب کے لیے ان کا یہی پیغام تھا کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مینا خان افریدی سے جو وہاں پہ سلوک کیا گیا, پہلے آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے آپ زخمی ہوئے تھے, آج اس کے باوجود آپ ایک بار پھر سے پہنچے ہیں زخمی ٹانگ کے ساتھ, تو کیا جذبہ ہے آج پھر یہیں پر؟ اگر وہی صورتحال پیدا ہوتی ہے, آپ پھر زخمی ہو جاتے ہیں, تو آپ پھر دوبارہ آ جائیں یہاں پر؟ جو قید میرے لیڈر عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں, جو قربانی عمران خان صاحب دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, اس پاکستان کے لیے, تو ہماری قربانیاں جو ہیں یہ بہت چھوٹی ہیں ان کے سامنے. وہ 75-76 سال کی عمر میں
कैद हक में पड़े हैं, उनको गोली लगी, उनको ज़ख्मी किया गया, उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई, उनके घर को तोड़ा गया, उनकी फैमिली को उठाया गया, उनकी बहनों के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी गैर सियासी घरेलू खातून बुशरा बीबी उनको कैद हक में रखा हुआ है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी फैमिली के ऊपर तशद्दुद किया गया। और इमरान खान साहब का बांजा हसन नियाजी उसको कैद हक में रखा हुआ है। इमरान खान साहब की बहनों को रोड के ऊपर घसीटा गया, उनके ऊपर पानी फेंका गया। तो ये तमाम वो कुर्बानियाँ हैं जो हमारी कुर्बानियाँ हैं, इन कुर्बानियों के सामने वो बहुत छोटी है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग, आम नौजवान जो पाकिस्तान को एक नए पाकिस्तान का तस्वर लेके आए इमरान खान साहब की क़यादत में, हम उनके साथ आए, हमने उनको ज्वाइन किया और इमरान खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें लीडर बनाया। सोहेल अफरीदी जैसे नौजवान मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नौजवान को चीफ मिनिस्टर बनाया, मुझ जैसे लोअर मिडिल क्लास नौजवान को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बनाया। और मैं ऐसा पार्लिमानी लीडर नहीं बल्कि 180 जीते हुए नशिस्तों का मैं पार्लिमानी लीडर हूँ। वो कि इस वक्त हमारी कौमी असम्बली में 80 के करीब नशिस्तें हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने तो 8 फरवरी को हमें 180 प्लस नशिस्तें दी थी। तो ये मेरी बड़ी इज़्ज़त की बात है जब हमारा लीडर हमें ऑन करता है, हमारा लीडर हमें इतना प्यार देता है, हमारे लीडर ने हमें लीडर बनाया, तो फिर कुर्बानियाँ भी देंगे, मार भी खाएंगे, टांगे भी तोड़वाएंगे, सर भी तोड़वाएंगे, लेकिन पुरअमन रहेंगे, पुरअमन तरीके से। ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई गुल फाड़ा हो। और असमा बुखारी जिसको हम इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, आप ऐसा करें जहांगीर, आप तो कर सकते हैं, बाकी अगर कोई नहीं कर सकता। आप असमा बुखारी जब पाकिस्तान पीपल पार्टी में थी, उनके वो तमाम क्लिप्स, मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि आप सब ने वो तमाम क्लिप्स इकट्ठे करने हैं, उन तमाम क्लिप्स को अपनी सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर और मरियम नवाज़ को टैग करके वो आप लोगों ने उनको भेजने हैं, जो वो गुफ्तगू करती थी मरियम नवाज़ के हवाले से। और दूसरा जो राना सनाउल्लाह, जो मरियम नवाज़ के हवाले से राना सनाउल्लाह की जो गुफ्तगू थी, जो वो फरमाते थे या जो वो बोलते थे, या बल्कि से तीसरा लफ्ज़ में नहीं बोलता, वो आप ट्विटर के ऊपर डालें और मरियम नवाज़ को इनका माजी याद दिला रहा है। और इस वक्त जो मरियम नवाज़ की 4-5% जो पॉपुलैरिटी है, 5-6% ज़्यादा नहीं है, वो पॉपुलैरिटी जो है उसका बेड़ा ये असमा बुखारी और इसकी वो 3-4 सहेलियाँ, ये इसका बेड़ा गर्क करेगी। और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में पंजाब की हमारी जो तहरीक इंसाफ है, हम इस मुसल्लत शुदा टोले और इन सहेलियों के ग्रुप से पंजाबियों को इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे। इंतजार हो रहा है शायद खटक साहब, 8 फरवरी को क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं आप लोग? 8 फरवरी को कुछ भी हो सकता है, और 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल है उसका भी ऐलान है, जो हमारी एलाइस पार्टी है उन्होंने दिया है। और 8 फरवरी को इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी पुरअमन तरीके से अपने घरों से निकले और उन तमाम कुव्वतों को पैगाम दे जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला। देखिए, ये तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं था, ये इमरान खान का मैंडेट सिर्फ नहीं था, ये पाकिस्तानियों का वोट था जिनको इन्होंने चोरी किया, डाका डाला। तो 8 फरवरी को जिसने भी तहरीक इंसाफ को, जिन लोगों ने भी तहरीक इंसाफ को अपना वोट दिया, को कि हमारे पास बल्ला नहीं था, किसी ने चमचे को वोट दिया, किसी ने आलू को वोट डाला, किसी ने भिंडी को वोट डाला, किसी ने मेरा निशान बाजा था, किसी ने ट्रांसफार्मर को, मुख्तलिफ निशानों को इमरान खान साहब के नाम के ऊपर आपने वोट डाला। तो 8 फरवरी को जिस तरह आप वोट के लिए निकले थे, 8 फरवरी को इसी तरह आप अपने वोट के एहतिसाब के लिए ज़रूर निकलें। देखिए, जब तक पाकिस्तानी नहीं निकलेंगे, जब तक बैसियत कौम हम नहीं निकलेंगे, तब तक इन लोगों का एहतिसाब बड़ा मुश्किल है। आपने निकलना है, हमने अपने हुकूक के लिए खड़ा होना है, हमने खौफ के बुतों को तोड़ना है, इन जेलों से नहीं डरना, इनकी तशद्दुद से नहीं डरना। ये कब तक करेंगे ऐसा, कब तक ये हमें डराते रहेंगे? लेकिन इंशाल्लाह अब पाकिस्तानी कौम जो है वो डरने वाली नहीं है। वनडे मैच होगा एक दिन का, या उसके बाद ये चलता रहेगा, उसी दिन धरना भी शुरू हो जाएगा, या क्या ब्लेमल होगा? अभी ये तो इंशाल्लाह 8 फरवरी अभी दूर है, 8 फरवरी से पहले पार्टी इसके ऊपर, चूँकि हमें लाइव पार्टी है इस वक्त, जो महमूद खान अशरफी साहब ने कॉल दी है, वो सरबराह है इस वक्त, जो आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वो सरबराह है। तो वो जो अमल देंगे, एक एलाई पार्टी की हैसियत से तहरीक इंसाफ उसमें पार्टिसिपेट करेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपना अलग भी प्लान कर रही है, हम अलग भी अपनी चीज़ें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि इमरान खान साहब ने जो प्रोटेस्ट या जो चीज़ें करने हैं उसकी तमाम जिम्मेदारी महमूद खान अशरफी साहब और अलामा नासिर राजा साहब को दी है, तो हम उनको फॉलो करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म है। जुमेरात को वो तो अभी पार्टी, देखिए नाम तो पार्टी डिसाइड करती है कि
किसने जाना है किसने नहीं जाना, तो अगर पार्टी नाम डालेगी लिस्ट में वो जरूर आएंगे। देखिए सुहेल अफरीदी कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं को खुद को खास समझता है, वो तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर की हैसियत से इधर आता है। आपको पता है जहांगीर, आप तो जानते हैं, हमें बड़े ज़माने से, दीगर यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं आप सब जानते हैं कि अडियाला में आपको पता है कि सबसे पहले आने वाले हम 3-4 लोग थे कि हमारे वक्त यहाँ पे मौजूद होते थे। जिधर भी कभी भी अगर हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब का केस होता था हम मौजूद होते थे। किसी भी अदालत में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा का अगर कोई भी केस होता था तो हम उधर मौजूद होते थे। और सुहेल अफरीदी जो है वो अक्सर हम आपस में हंसते भी है कि मैं इन बिल्डिंग और इन ऊंची दीवारों में मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो फील्ड का आदमी है। और अभी चूंकि वो चीफ मिनिस्टर है तो जिम्मेदारियां उनकी बढ़ गई है, उन्होंने सूबा चलाना है, सूबे के गवर्नेंस को ठीक करना है, अपने अमान की सूरत हाल को बेहतर करना है, डेवलपमेंट करनी है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हमें सर्व करना है। और इस पंजाब में जो साफ सुथरा पंजाब है कि पता नहीं कौन सा पंजाब है, उसके नाम से एक इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है। और ये करप्शन का, मरियम नवाज और उसकी काबीना ने करप्शन के लिए एक रास्ता खोल दिया है। अब ये कौन ढूंढेगा कि आपने 20 अरब की सफाई की है, अभी इसका क्या पैमाना है कि पता चलेगा कि हाँ 20 अरब का कचरा इन्होंने साफ किया है। बेसिकली ये चाहते हैं कि ये पैसे लूटे, जिस तरह इन्होंने पहले टीटीस के जरिए मुल्क का पैसा लूटा, बाहर भेजा, बाहर जायदादें बनाई। और आपको पता होगा कि टीवी के ऊपर मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, लेकिन जब इनकी तलाशी ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो मेफर में इनके अपार्टमेंट निकल आए और बेनामी जायदादियाँ इनके ऊपर आए, स्विस में इनके अकाउंट्स हैं। तो बेसिकली तो ये पाकिस्तान को लूटना चाहते हैं और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ बिल्कुल इनको ऐसा करने नहीं देगी। हमारी जो पार्लियामानी पार्टी है पंजाब की, वो ये साफ सुथरा पंजाब के ऊपर जो है वो बड़ा फोकस है, वो एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। और मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आप एक एक चीज़ अवाम के सामने लेके आएँ कि ये कैसे साफ सुथरा पंजाब है। जब हम लक्ष्मी चौक लाहौर में, उधर तो सारा गंद पड़ा हुआ था। अगर अंदरूनी शहर लाहौर का ये सफाई का हाल है, बाकी अजला का क्या होगा। आप पिंडी जाएं, आप फिर एक गली कुछ में मीडिया वालों को कहता हूँ कि आप लोग जाएं, दिखाएं इनकी गंदगी के ढेर। तो जब गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं तो फिर कैसे साफ सुथरा पंजाब। अच्छा शायद खटक साहब ये बताइएगा कि लाहौर पंजाब का कामयाब दौरा रहा और कारकुनान बड़े तादाद में निकले। 9 मई के बाद पहला दौरा था जहां पे इतने कारकुन निकले। आगे अब आप लोग सिंध जाएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? ट्रेन मार्च करेंगे सिंध की तरफ या फिर बाय एयर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे? क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है इस हवाले से? पहली बात ये कि लाहौर से पहले भी हम एक दफ़ा गए थे, आपको याद होगा, ऐसा नहीं कि हम नहीं गए। हमने वहाँ पे लाहौर में जलसा भी किया, जो बहुत बड़ा जलसा था। गो के हमारे खैबर पख्तूनख्वा का काफ़िला बदकिस्मती से रुकावटों की वजह से हम ना पहुँच सके, लेकिन हमने कोशिश की वहाँ पे। लेकिन लाहौर की आवाम ने खुद अपना जलसा वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा किया। और वज़ीर चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब का ये पहला दौरा था, वो गए, लाहौर की आवाम ने उनको बड़ा वार्म वेलकम किया, बल्कि पूरे पंजाब ने, जहाँ जहाँ से भी हम गुजरे। हम सरगोदा गए, सरगोदा में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्होंने हमें फ्लाइंग किसी भी भेजी, हमें हमारे साथ मोहब्बत का इजहार भी किया। इमरान खान साहब को भी उन्होंने पैगाम दिए, हमें लोगों ने तहाइफ दिए। वहाँ पे हमें पंजाब के पग बनाए गए, हमें वहाँ पे चादरें दिए गई। वहाँ पे पंजाब में जो चीज़ें, और स्पेशली सरगोदा के कारकुनान ने हमें माल्टे भी दिए। ये उनका प्यार था कि इतनी मुश्किल फसाइयत जबर के बावजूद, पुलिस के रोकने के बावजूद, पुलिस के पकड़ने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना, ये इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ से मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है। अब कराची के हवाले से मैं आपको अभी कबल अज़ वक्त है कि मैं अगर आपको कोई चीज़ ब्रेक करूँ, वो हमारी सिंध की जो तंजीम है, कराची की हमारी जो तंजीम है, कराची या सिंध के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, MPs हैं, उनके साथ मशावरत करेंगे। वो जैसा कहेंगे, जैसा वो लाए अमल देंगे। इस दफ़ा जब हम पंजाब आए, हमें आलिया हमजा साहिबा जो हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, उन्होंने हमारे दोस्तों के साथ, जो नहीं पंजोता, इंतज़ार भाई, उन सब के साथ, हमारी लाहौर की तंजीम के साथ, वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ, और उन सब ने जो हमें प्लान दिया, उसी प्लान के ऊपर हम गए। तो कराची की तंजीम जिम्मेदारान हमें जो प्लान देंगे चीफ मिनिस्टर साहब को, उसी तरह इंशाल्लाह हम जाएंगे। इतने MLAs हैं, MPs हैं और सेनेटर हैं, लेकिन उसके बावजूद इधर 10% भी नजर नहीं आते, इसकी क्या वजह है? बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन अब चूँकि मेरे ज़िले से, आपका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, तो शायद आप ज़्यादा पंजाब के हमारे MPs को आप नहीं जानते, तो शायद इस वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी तकरीबन 15-20 मेरे साथ बैठे हुए हैं, इधर ही मौजूद हैं। चूँकि हमारे कारकुन इस वक्त चार्ज हैं, तो हम चाहते हैं कि कारकुनान
तब तक उधर बैठे रहे, शायद जब वो थक जाएंगे तो हम जाके उधर बैठ खटक जाएंगे। साहब ये बताइएगा कि आप लाहौर के बाद आप लोग मरियम नवाज को दावत दे के आए और वो खबर ये भी आ रही है कि मरियम नवाज ने वो दावत कबूल कर ली, वो मानसेरा आना चाहती हैं, तो क्या उनको भी वेलकम किया जाएगा? आप लोग वेलकम करेंगे जो आपने बात वहाँ पे लाहौर में खड़े होकर कि आएंगे आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, तो मरियम नवाज की मेहमान नवाजी करेंगे वहाँ पे KPK में? अभी अगर हम भी उनकी तरह आदत शुरू कर दें तो ये असल में ये चाहते क्या है, इनका बुनियादी तौर पे मकसद ये है, ये जो चीज़ें करते हैं कि ये तकसीम पैदा करें, ये नफरतों के बीज बोए, ये पंजाबी और पख्तूनों को लड़ाए, और ये चाहते हैं कि हम तकसीम पैदा करें और हम रूल करें। देखिए दुनिया का जो पॉलिटिक्स जो कानून है कि तकसीम पैदा करो, हुक्मरानी करो, लेकिन पंजाब इनका तो नहीं है। पंजाबियों ने तो इनको रिजेक्ट किया, इनको तो कुल 18 नशिस्तें भी नहीं है। नवाज शरीफ हारा हुआ है, मरियम नवाज में शराफत से हारी हुई है, इनके जितने भी है यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ हारा हुआ है। तो ये तो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे ये पंजाबियत का कार्ड खेले, लेकिन पंजाब तो इनका नहीं है। पंजाब की आवाम तो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। आज क्या करेंगे? गुज़िश्ता जब आप आए थे तो आप यहाँ पे आपके चोटें आई, टांग टूटी और एक मरतबा फिर आप रिकवर होके आज फिर अडियाला में खड़े हैं। बड़ा मैसेज है ये लोगों के लिए कि आप पीछे नहीं हट रहे। क्या प्लान करके आ जाएं? आज बैठेंगे, वाटर कैनन हो, बख्तरबंद गाड़ी हो, गिरफ्तारी हो, जो कुछ हो। हम पुरअमन तरीके से इधर खड़े हैं। आप देखते हैं, आप मीडिया वाले सब रिपोर्ट करते हैं कि कभी भी हमने अडियाला के सामने कोई भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। हम इनको बिल्कुल मौका नहीं देते। हम इधर पुरअमन तरीके से खड़े होंगे। हम यहाँ पे जिस तरह बैठे हैं, धरना दिए हैं, हमारे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं हमारे इधर, वो भी आई हुए हैं सोलिडेरिटी के लिए, और बेसिकली उन्होंने इमरान खान साहब का आइसोलेट किया हुआ है। तो इधर हम पुरअमन बैठे हैं, ये पानी मारते हैं, पकड़ते हैं, जो भी करते हैं, उनका अपना प्लान है। हमारा ये प्लान है कि अगर इन गिरफ्तारियों से लोग डरते, इन चोटों से लोग डरते, तो आज मैं ना खड़ा होता। हमारे जिन कारकुनान को ये पकड़ते हैं, ये उधर जाके पकड़ लेते हैं, 3-4 जेलों में डाल देते हैं, चौथे दिन वो दोबारा अडियाला आ जाता है। तो इन चीज़ों से तो अब ये कौम डरने वाली नहीं है। अभी हमारी अलीमा खान साहिबा से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आज कारकुन चले भी जाते हैं, वो अकेले तने तनहा बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, जो मर्जी। उन्होंने कहा हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। तो जब तक वो बैठी हैं अपने भाई के लिए, तो हमारा लीडर है इमरान खान साहब, हम भी इधर बैठे हैं इंशाल्लाह। और ये मसला मुलाकात का नहीं है, ये मसला आइसोलेशन का है। पता नहीं ये इमरान खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर अगर अल्लाह ना करे, शायद ये कोई फिजिकल टार्चर भी करते रहे अंदर उनके ऊपर, क्योंकि मेंटली तो ये ऑलरेडी इमरान खान साहब को टार्चर कर रहे हैं। एक चक्की के अंदर 6x6 चक्की में के अंदर इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है। तो हमें क्या पता कि जेल के अंदर क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, उनकी सेहत कैसी है, बुशरा बीबी की सेहत कैसी है, क्योंकि बुशरा बीबी के साथ भी ये इन्होंने मुलाकात बंद कर दी है। चलो इमरान खान साहब के हवाले से ये कहते हैं कि वो सख्त गुफ्तगू करते हैं या सख्त ट्वीट आता है उनका। बुशरा बीबी का क्या कसूर है? क्या बुशरा बीबी ट्वीट कराती है? क्या बुशरा बीबी का आपने कभी पैगाम सुना है कौम के नाम? वो तो एक घरेलू, एक गैर सियासी खातून है बुशरा बीबी, तो उनका क्या कसूर है? उनसे भी नहीं मिलने दे रहे हैं। असल में इनका मकसद ये है कि बुशरा बीबी को टार्चर करें, बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करें, बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस्तिकामत दे कि वो उनकी मजबूती बनी हुई है, वो उनका हौसला बने हुए हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का एक सेकंड के लिए भी हौसला तोड़ने नहीं दिया। और इसी तरह इन्होंने इमरान खान साहब को ये चाहते हैं कि हम आइसोलेशन के ज़रिए, उनको मेंटल टार्चर के ज़रिए, फिजिकल टार्चर के ज़रिए इमरान खान साहब को ये तोड़ लेंगे, ये हकीकी आज़ादी के बयानी से इमरान खान साहब को पीछे हटा देंगे, या इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ की जो हमारी जदोजहद है, या जो सिविल सुप्रीमेसी की हमारी जदोजहद है, उससे इमरान खान साहब पीछे हट जाएगा। अगर इमरान खान साहब ने पीछे हटना होता तो वो 2.5 साल कैद हक में ना पड़ा होता। लेकिन ये इनकी हमख्याली है, ये इन लोगों का खौफ है, ये इन लोगों का डर है। इमरान खान साहब 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर लास्टली बताइएगा शायद खटक साहब कि अगर रात को दोबारा से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कैसे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कैसे बर्दाश्त करेंगे फिर आप लोग? हम देखिए, हम इंसान हैं, हम कोई उसके पत्थर के नहीं बने हुए। ये तशद्दुद करेंगे, करते रहें, इन्होंने पहले भी किया, आगे भी करेंगे, इनसे हमें कोई अच्छी की तवक्को नहीं है। तो अगर ये तशद्दुद करते हैं तो हम अपने पुरअमन के जरिए इस तशद्दुद को बर्दाश्त करेंगे। हम कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई भी इकदाम नहीं करेंगे कि जिससे इनको मौका मिले। देखिए उस दिन भी पानी इन्होंने फेंका, FIR कारकुनान के ऊपर कर दी,
कि जो उन्होंने पत्थर फेंका। अब सब गवाह हैं जो मीडिया वाले इधर मौजूद हैं, कोई हम यहाँ पे किसी को हमने ये नहीं कहा कि आपने पुरअमन नहीं रहना। हमारे कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है और हम पिछले 2-2.5 सालों से इधर आ रहे हैं। एक गमला, एक इधर पत्ती हमने नहीं तोड़ी। हम इधर पुलिस वालों को चाय पिलाते हैं, हमारा खाना कोई देता है तो करीब पुलिस वाला खड़ा हो हम उनको खाना खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से आए हैं, लेकिन उनको ऊपर से हुक्म आता है, उनको ऑर्डर मिलते हैं, तो फिर वो जो है वो खुद को मजबूर कहते हैं, तशद्दुद करते हैं, फिर वो भी। शुक्रिया सर। इमरान खान